चैप्टर 4 का नया टॉपिक है। ठीक, एम्पियर की डेफिनेशन निकालनी है। वो कैसे निकालेंगे? द फोर्स, पहले हम कैलकुलेट करेंगे फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट्स। ठीक है, तो इसी से हम एम्पियर की डेफिनेशन निकालेंगे, एम्पियर। ठीक है, नाउ इससे पहले आपने पढ़ा है, बिफोर गोइंग टू द टॉपिक, ये पहली चीज रखिए, अगर करंट इस कंडक्टर में जा रही है इन दिस डायरेक्शन, देन इट विल प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट हुज डायरेक्शन विल बी given by the right hand thumb rule. That is, if thumb is placed in the direction of the current, then curling fingers will be the direction of the magnetic field. So magnetic field will be here into the plane of paper. अगर ऐसे हो, ऊपर से नीचे करंट आ रही है, so magnetic field in that case will be out of the plane paper. क्यों ऐसे? तो ये out of the plane of paper आएगा। ठीक है ना, ये क्लियर? So let us suppose that we have two conductors, part of the conductor, ठीक, infinite conductors, now having area cross, negligible area of cross section, ये infinite है, let us name it as A. ठीक, now let us suppose that current IA flows through it in this direction. ठीक है, now since current is flowing through it, it will produce a magnetic field around it. ठीक है ना, now let us place another conductor, negligible area of cross section. ठीक, let us suppose this length is L, इन दोनों की length L है। now since this is in the magnetic, since ये magnetic field produce करेगा, so this conductor will lie in the magnetic field of this conductor। ठीक है ना, now magnetic field as per this will be directed into the, जैसे मैंने यहाँ दिखा, into the this, and it will be perpendicular to this। ठीक है ना, so it will produce B। now according to this Ampere circuit law, the magnetic field BA will be equal to, let us suppose D is the distance between these two conductors, it will be mu0 by 2 pi D into IA। ठीक, ये करंट IA की वजह से प्रोड्यूस हुआ। now let us suppose that current IB passes through this conductor। ठीक, now current IB passes through this conductor. We know if we have a conductor through which a current I is passed and is placed in some magnetic field, here it is in the magnetic field BA due to this, so it will experience a force. That force F will be equal to IL, if length of this is L, IL cross BA। ठीक है ना, बात समझ में आई? now so now IL and B are perpendicular to each other, so it will force, the force acting on this conductor B due to A, whose magnitude will be equal to IL cross B, that is करंट क्या है इसमें? IB, इसकी लेंथ हमने L ली। ठीक, क्रॉस BA साइन थीटा, क्योंकि L और कंडक्टर और B के दरमियान एंगल 90 है, सो साइन थीटा हमें लिखने की जरूरत है, वो 1 के बराबर है। ठीक है ना, नाउ BA का वैल्यू निकालेंगे, दिस BA जो यहाँ पर हमने लिया, तो वो क्या आएगा? IB L mu0 by 2 pi D into IA। ठीक है, तो इसको थोड़ा अरेंजमेंट करेंगे, ये वैल्यू हमने दिया यहाँ से, BA का वैल्यू यहाँ पर लिखा, सो FBA विल बी इक्वल टू mu0 by 2 pi D IA IB into L, इसको इक्वेशन 1 लिखेंगे। ठीक, now direction of the force, direction of the force will be given by the Fleming's left hand rule, और जो क्रॉस प्रोडक्ट का रूल होता है, so we will apply Fleming's left rule to find the direction। ठीक, तो देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड इनटू इट, करंट इस डायरेक्शन में। ठीक, सो थंब जो है हमारा, थंब विल बी इन दिस डायरेक्शन। ठीक है ना, ऐसे, तो फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन, F फोर्स एक्टिंग ऑन B ड्यू टू E। ठीक है, सो इट विल बी इन दिस डायरेक्शन, और यू कैन ये
आप राइट हैंड रूल भी लगा, ये क्रॉस प्रोडक्ट का रूल भी अगर लगाएंगे, देखिए ILB दैट इज दिस इज रोटेटिंग टुवर्ड्स दिस, तो ऐसे तो ये इस तरफ जाएगा, सो दिस विल बी फोर्स, ठीक है ना। सो हियर इट विल बी इन द प्लेन ऑफ द पेपर बिकॉज दीज कंडक्टर्स आर लाइंग इन द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है ना। नाउ सिमिलरली this conductor will produce, since it has a current IB, it will produce a magnetic field here, but the direction of this will be out of the plane of the paper, ठीक है ना। So current IB, so it will produce a magnetic field B that will be out of the plane of the paper, ठीक है ना, ऐसे BB, ठीक है, it will be out of the plane of paper, ठीक, तो direction of current will be so BB as per Biot-Savart law, as per Ampere's circuit law, BB will be equal to mu 0 by 2 pi D into IB. ठीक. Now this is a current carrying conductor in the magnetic field BB. So it will produce a force will act on it. वो force कैसे होगा? I cross B. देखिए ये अगर I इस डायरेक्शन में, ऐसे मैं दिखा रहा हूँ, देखिए I इस डायरेक्शन में या IL समझे, तो B इस डायरेक्शन में आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर, ठीक। तो जब हम इसको करेंगे ऐसे रोटेट करवाएंगे, सो ऐसे, सो इट विल कम आउट, ऐसे हमने स्क्रू को रखा है तो ऐसे आएगा, ठीक है। तो ये ऐसे है, ये पेन अगर ऐसे है, ठीक, ये फोर्स है, तो जब मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा तो ये आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर, सो इट विल बी इन दिस डायरेक्शन, नॉट आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, सो फोर्स एक्टिंग ऑन A ड्यू टू B, ठीक है। So FAB will be in this direction, ठीक है। So if we write this, so it will be equal to FAB is equal to, जब हम यहाँ पर ऐसे मेथड करेंगे, so it will be IB 2 pi D IB into L, ठीक है, बात समझ में आई। तो हमने यहाँ पर देखा FAB और FBA are equivalent opposite to each other, ठीक है ना। FAB is equivalent opposite to FBA, so they obey Newton's third law. Now अब देखिए अगर एंटी पैरेलल करंट्स होंगे, देखिए ये इन्फिनिट कंडक्टर है, ठीक। अब IA इस डायरेक्शन में है और IB इस डायरेक्शन में, ठीक। तो देखिए अब जो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड वो तो होगा इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू दिस BA, लेकिन अब करंट की डायरेक्शन ये है, ठीक। तो जब करंट की डायरेक्शन, सो क्लेमेंट्स लेफ्ट हैंड रूल अगर लगाएंगे, देखिए ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, इट विल बी इन दिस डायरेक्शन FBA, ठीक। इसी तरह से यहां इसकी वजह से दिस ये जो होगा फोर्स, इट विल बी, क्योंकि यहाँ अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, एंड इट विल बी हियर इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है ना। तो ऐसे होगा, करंट इस डायरेक्शन में, तो जब ऐसे लगा तो फोर्स किस डायरेक्शन में, ऐसे आएगा, या फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये करंट है, तो जो थम आएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है ना, ऐसे करंट की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन, और ये होगा ये, सो इट विल बी लाइक दिस FAB, so they will repel each other, so parallel currents attract while anti-parallel currents repel each other, ठीक है। नाउ हमने देखा अभी एक फोर्स FB, उसका मैग्नीट्यूड क्या था, mu 0 by 2 pi D IA IB L, ये था ना। नाउ FBA by L, फोर्स पर यूनिट लेंथ, इसको हम लिखेंगे FAB, वो किसके बराबर आएगा, mu 0 by 2 pi D IA IB। नाउ इसमें से हम डेफिनेशन ऑफ एम्पियर निकालेंगे। नाउ अब देखिए हमने देखा F मैग्नीट्यूड एक फोर्स का, क्योंकि दोनों सेम है तो हमने एक का मैग्नीट्यूड लिया, वो था mu 0 by 2 pi mu 0 by 2 pi
आई ए आई बी डिवाइडेड बाई डी इंटू एल। अब एल को हम यहां लेंगे लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है ना। यह आएगा आपका μ0/2π आई ए आई बी बाई डी। ये हो गया फोर्स पर यूनिट लेंथ, एफ बी ए इसको लिखेंगे। इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये आ जाएगा μ0/4π इंटू आई ए आई बी बाई डी, ठीक है। नाउ लेट अस से आई ए इज इक्वल टू आई बी इज इक्वल टू 1 एम्पियर, डी इज इक्वल टू 1 मीटर, ठीक है ना। एंड μ/4π होता है आपका 10⁻⁻⁷। तो इसमें अगर लगा देंगे हम, सो फोर्स पर यूनिट लेंगे तो आपका बनता है 2 × 10⁻⁻⁷। ये 1 इंटू ये आ जाएगा, ठीक। सो ये बनेगा न्यूटन। Thus we define ampere as so 1 ampere A is that much of current which when flowing let's say 1 ampere is that much of current which when flowing through each of the two parallel linear conductors placed in free space at a distance of 1 meter from each other will attract or repel each other with a force of 2 × 10⁻⁻⁷ ये वाला -7 न्यूटन per meter of their length। ठीक है ना। तो 1 एम्पियर इज दैट मच करंट which when flows through which when flowing, ठीक है, यहाँ पर flowing through each other of two parallel linear conductors placed in free space at a distance of 1 meter from each other will attract or repel each other with the force of 10⁻⁻⁷ न्यूटन। तो यहीं पर हमने किया ना, देखो करंट हमने 1 एम्पियर की थी, दोनों 1 × 1, एक किया 1 मीटर 1 μ0/4π वो आपका 10⁻⁷, 2 × 10⁻⁷। तो वो ये होगी आपकी डेफिनेशन। While defining ampere, we did not take the magnetic field due to Earth into consideration. So before we while defining the ampere, we did not take the magnitude of the Earth's magnetic field into consideration। वो हमने नहीं, लेकिन Earth's magnetic field भी इंटरफियर करेगा, ठीक। वो आपको मैं समझाता हूँ कैसे। देखिए, अगर हमारे पास एक वायर है, ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है किसी प्लेस पे 3 × 10⁻⁻⁵ टेस्ला। अगर हम एक वायर को ऐसे रखेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है ना, तो हम वी नो दैट फोर्स एक्टिंग ऑन इट
कैरिंग करंट, ठीक है ना, ऑफ 1 एम्पियर, ठीक है, 1 एम्पियर। पहले हम लिखेंगे I, ठीक है। सो इट विल हैव अ फोर्स दैट विल बी IL क्रॉस B, ठीक है। नाउ दिस इज IL क्रॉस B नाउ, और मैग्नीट्यूड विल बी ILB साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए फोर्स पर यूनिट लेंथ, एल यहां लाएंगे, फोर्स पर यूनिट लेंथ, क्योंकि एम्पियर डिफाइन करने के वक्त हमने ये किया था। सो IB साइन थीटा, ठीक है ना। नाउ दैट इज F, फोर्स पर यूनिट लेंथ, IB साइन थीटा, ठीक है ना। देखिए ये आपका नॉर्थ साउथ, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ऑलमोस्ट होता है इन द डायरेक्शन ऑफ दिस नॉर्थ साउथ। अब करंट इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ एंगल क्या बनता है 90 डिग्री। सो थीटा विल बी 90 डिग्री। सो व्हेन द कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड एक्ट करता है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। सो F विल बी इक्वल टू IB साइन थीटा इज 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ बनेगा IB के बराबर। नाउ करंट, अब अगर हम 1 एम्पियर लेंगे तो फोर्स पर यूनिट लेंगे कितना होगा 1 इंटू B कितना है अर्थ का इधर 3 इंटू 10⁻⁻⁵ न्यूटन पर मीटर। लेकिन जब हमने देखा था ये आएगा आपका F इसको 3 इंटू 10⁻⁻⁵ न्यूटन पर मीटर, ठीक है। लेकिन जब हमने करंट डिफाइन की थी 1 एम्पियर, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या था तब 2 इंटू 10⁻⁻⁵ न्यूटन पर मीटर। देयरफॉर लेट अस से दिस इज F डैश, ठीक है। तो ये छोटा है, ये बड़ा है, तो यहाँ पर जब हमें करंट को डिफाइन, एम्पियर को डिफाइन करना होगा, तो वी हैव टू एलिमिनेट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस अर्थ, ठीक है ना। तो अगर यही वायर को हम ईस्ट वेस्ट में नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रखते हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक, लेकिन तब एंगल क्या बनता है 0, थीटा विल बी 0, करंट कैरिंग कंडक्टर भी इसी डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का भी इसी डायरेक्शन में। सो थीटा विल बी 0, सो F विल बी ये जो होगा थीटा विल बी 0, देयर विल बी नो एडिशन टू दिस बिकॉज दिस विल बी 0, ठीक है, क्लियर। सो देयर विल बी नो इफेक्ट, सो F विल बी 0, ठीक है।